Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. Okay, in the previous video we had looked at how to find out electric potential due to various extended objects. Now उसी चीज को अब हम लोग आगे continue करेंगे. Now in this video what we will do is we will find out potential due to infinitely long uniformly charged wire. So let's say दिस इज योर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. इसके वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना. ओके ना, अगर जो आपको याद हो तो हम लोगों ने हमेशा ये कंसेप्ट पे मतलब वी हैव ऑलवेज यूज दिस. लेट्स से व्हेन यू हैव अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, आपका जो पोटेंशियल होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर. बट जब आप ये इक्वेशन लिखते हो तो यहाँ पे हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं. हम लोग अज्यूम क्या करते हैं? एट आर इक्वल टू इंफिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. दिस इज आर अजम्पशन. हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट कहता है ना, यही हमारा तो रेफरेंस पॉइंट होता है. समझ में आ रहा है आपको? याद है हम लोगों ने ये चीज कही थी. बहुत बार क्या होता है कि ये इक्वेशन आप इतना यूज करते हो कि आप भूल ही जाते हो कि ये चीज, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन. But now when you talk of infinitely long uniformly charged wire, the thing is कि ये वायर infinity तक extend कर रही है ना, and because it is extending till infinity, what will happen is infinity पे भी आपके पास कुछ charges होंगे and infinity पे भी कुछ charges होंगे, तो infinity पे आपका potential cannot be 0. समझ में आ रहा है आपको? So I write potential is not 0 at infinity. Is not 0 at infinity. So if potential is not 0 at infinity, okay, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते ऐसे केस में, क्योंकि जब हम लोग ये पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं हम लोग ये मानते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. तो फिर ऐसे केस में व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या कर सकते हैं? We can find out potential difference between 2 points. We can find out potential difference between 2 points. Okay. So let's try to find this out. Potential difference between 2 points. क्योंकि जब आप potential difference find out करते हो तो इस potential difference find out करने के लिए reference point का कोई फिर use नहीं होता. Okay. So we don't need to assume this. कोई assumption लेने की जरूरत नहीं है. So let's do this now. Now we know this, due to infinitely long wire, your electric field is in this direction. This is how your electric field is. Okay. And we know that at a distance r, electric field is equal to lambda upon 2 pi epsilon into r. ये हम लोगों ने derive किया हुआ है. The electric field is something that we have already derived. So if your electric field is in this direction, तो अगर जो आप ये डायरेक्शन में जाओगे, if you go in this direction, potential will reduce. Because this is something that we have studied, right? कि if you go in the direction of the electric field, potential reduces. If we go in the direction opposite to electric field, your potential increases. Now, how do you find out potential difference between 2 points? So let's do one thing. Let's consider 2 points. Okay. Point A and point B. Okay. Now, in this case, if we want to find out potential difference between A and B, I will use this relationship. dV by dr is equal to minus E. Okay. So I can write dV is equal to minus E into dr. Now, if I integrate this, okay, let's say initially your distance is RA. तो वहां पे आपका potential, let's say it is VA. At point B, wire से इसका distance, let's say it is RB. Let's say potential at point B is VB. So, VB minus VA will be equal to minus E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई ई आर डी आर
varies from RA to RB. Okay, so therefore VB minus VA is equal to lambda upon 2 pi epsilon. ये हो जाएगा ln R varies from RA to RB. So this becomes equal to minus lambda upon 2 pi epsilon ln of RB by RA. Now you can see that ये सारे positive numbers है. This is a positive number. These are positive numbers. This is a positive because RB is more than RA. ये ratio is more than 1 तो आपका ln भी positive number है. So because all these are positive numbers, you can see that VB minus VA will be a negative number. So therefore VB minus VA is less than 0. So potential at B is less than potential at A. एंड हम लोगों ने ये कहा ही था कि जैसे ही आप इस डायरेक्शन में जाओगे ए से बी की तरफ जाओगे पोटेंशियल रेड्यूसेस. ओके, सो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ln of RB upon RA. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड आउट की हुई है पहले. लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. So potential inside uniformly charged sphere. एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ये हम लोग मानते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्जेस जो होंगे वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. Non-conducting. Okay, so you have ये स्फीयर है. इसमें चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, हाँ हमें पोटेंशियल इनसाइड तो फाइंड आउट करना ही है, हमें पोटेंशियल आउटसाइड भी फाइंड आउट करना है. तो पहले एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. सो पहले कुछ चीजें लिख देता है. लेट्स से चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू. ओके, लेट्स से रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर. सो आई कैन डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho is equal to charge upon volume, that is 4 by 3 pi r cube. ठीक है. Now once this is done, now हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. Okay. Now when we talk of potential outside the sphere, अब outside the sphere आपका potential आप कैसे find out करोगे? Now हमें ये पता है कि for the points which are outside the sphere, sphere can be replaced with a point charge. Correct? ये हम लोगों ने गॉस लॉ जब यूज किया था, गॉस लॉ को यूज करके जब हम लोगों ने स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, तो हमें ये रियलाइज हुआ था ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वाज सेम एज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज. So that is why for points, I can write it over here, for points outside the sphere, for points outside the sphere, it can be assumed as the point charge, as point charge located at its center. Located at its center.
Okay, so let's say if you want to find out potential at a distance r outside the sphere, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीयर के जगह पे यू कैन सिंपली अज्यूम अ पॉइंट चार्ज. ओके, the value of the charge would be same as value of the charge over here, that is q, and at a distance r. So अब ये कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है कि at a distance r पोटेंशियल कितना होता है. So 1/4 pi epsilon, this is q by r. ठीक है. Okay, now if you want to find out the potential on the surface of the sphere, so this is when r is greater than r. Okay, it is greater than the radius. Okay, now we will try to find out the potential on the surface of the sphere. Potential on the surface of the sphere. Now on the surface of the sphere we will use the same expression जो हम लोगों ने यहाँ पे derive किया हुआ है, बस small r के जगह पे small r would be replaced by capital R. So this is r is equal to capital R. So in this case potential on the surface of the sphere would be equal to 1/4 pi epsilon q by r. ठीक है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अब जो ट्रिकी पार्ट है दैट इज बेसिकली पोटेंशियल यू हैव टू फाइंड आउट इनसाइड द स्फीयर. पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर. जहां पे r is less than r. Okay, so let's say this is your sphere. Okay, and we know that the sphere is uniformly charged. हम लोगों ने ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देन आई विल बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप -dv/dr इज इक्वल टू E. मैं इसको यूज करना चाहता हूं. ओके, सो एट अ डिस्टेंस r आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, डू यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज रो r by 3 epsilon, correct, where rho we know it is volume charge density. It is volume charge density. Okay, so वापस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, we can again do this. हम लोग ये वाली रिलेशनशिप यूज करते हैं. So -dv is equal to E dot dr. So dv is equal to minus rho r by 3 epsilon into dr. अब कहां से कहां पे आप इंटीग्रेट करोगे? सी द थिंग इज लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नहीं पता सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, दैट इज नॉट गिवन टू अस ना, हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल है ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है. सो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ आर एज कैपिटल आर, मुझे सरफेस पे ये जो पोटेंशियल है Vs वो मिलेगा. ओके, and if I put value of r as, so if I consider any point p over here, so जिसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा दैट विल बी एज अ फंक्शन ऑफ r, Vr. ओके, मैं इसको Vp भी लिख सकता हूँ, बट आई जस्ट राइट इट एज पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r. सो V, if I integrate this, what I'll get is V minus Vs. इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी V, एंड आप लिमिट्स पुट करोगे तो V minus Vs आ जाएगा. This is equal to minus rho by 3 epsilon. Integral of r will be equal to r square by 2.
This varies from R to R. Okay. अब हम लोग values put करते हैं. So therefore this becomes potential on the surface is this 1 upon 4 pi epsilon Q by R. अच्छा, rho can be written as, how can you write rho as? It is volume charge density. It is charge divided by volume, that is 4 by 3 pi R cube 3 epsilon. And if you put the R square by 2, limits put करोगे तो minus R square by 2. This is what you would get. Okay. हाँ, इस माइनस साइन को अंदर देके जाता है. So this becomes V minus 1 upon 4 pi epsilon Q by R. ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा. So now what I'll get is 1 upon 4 pi epsilon Q by R cube R square by 2 minus R square by 2. ओके. अब ये टर्म को मैं इस साइड पे लेके जाता हूं. सो पोटेंशियल V बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यूब. R क्यूब को मैं पहले तो अंदर लेके जाता हूं, तो दिस विल बिकम R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब प्लस 1 upon 4 pi epsilon Q by R. Okay. Now you can see that 1 upon 4 pi epsilon can be taken out as common. तो ये होगा 1 upon 4 pi epsilon Q. This is 1 by 2R. यहाँ पे ये plus 1 by R आएगा minus R square by 2R cube. Okay. So this potential now becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon. This is Q half plus 1, that is 3 by 2R minus R square by 2R cube. ठीक है. If I take R cube outside, 2R cube outside, तो ये potential जो हो जाएगा, this will become equal to 8 pi epsilon R cube into Q. ये 3R square minus R square. This is what you would get. So मैंने 2R cube बाहर कॉमन निकाला है, तो ये 4 2s are, this will become 8. अच्छा, R cube बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे R square का टर्म आ जाएगा. This is what you will get. Now if you want to find out the potential at the center, of the sphere, आपको बस R की वैल्यू 0 पुट करनी है. So let's do this. तो यहाँ पे potential at the center of the sphere, I have to put R as 0, so I'll get V is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q by R cube into 4 नहीं है, ये 8 है, sorry, into 3R square. So this potential now becomes equal to 3 cube upon 8 pi epsilon R. This is potential at the center of the uniformly charged sphere. Center of uniformly charged sphere. ठीक है? Fine. Please go through this derivation once. This is very, very important. Okay, very important derivation. Okay. Now equipotential surface क्या होता है? It is basically a surface or collection of points जहाँ पे potential is same. Okay, potential is same. Now how do you identify such equipotential surfaces?
आपको याद है एक बार जब हम लोग पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन पोटेंशियल रिड्यूसेस, if you go in the direction which is opposite to electric field your potential increases. Okay, but if you go perpendicular to the electric field, मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर जाते हो तो your potential remains same. Okay, so basically if you consider all these points, ये सारे points पे आपका potential same है, तो these points would now become your equipotential surface. now जहां पे आपका potential सेम है, जहां पे मान लो ये एक रीजन है, लेट्स से, एंड इस रीजन के अंदर योर V इज कांस्टेंट, मान लो V वेरी नहीं कर रहा, तो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr. बट अगर जो V कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे. सो आई कैन से वन थिंग, इफ a region is an equipotential region जहां पे आपका potential is constant everywhere, इन सारे पॉइंट्स पे यहां पे आपका potential constant है, तो यहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that electric field will be equal to zero. Now if I ask you इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होती है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, कहां पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या किसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? हम लोगों ने गॉस लॉ में भी ये कंसेप्ट बहुत बार यूज किया है. Electric field is zero inside the conductor. Correct? Field is zero inside the conductor. Now if the electric field is zero inside the conductor, मान लो ये आपका कंडक्टर है, this is a conductor. So कंडक्टर के अंदर, this is let's say conductor. सो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो. सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, आई कैन से दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट. तो इन सारे पॉइंट्स पे योर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. करेक्ट? अच्छा, मोरेवर मैंने आपको ये भी समझाया है कि कंडक्टर के सरफेस पे सारे चार्जेस जो होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे आता है. ओके ओके, एंड यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहां पे ये जो रीजन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था जो रीजन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पोटेंशियल सेम होता है आपका. सो अब इन सारे पॉइंट्स को अगर जो हम लोग यूनाइट करें तो आई कैन से दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, पोटेंशियल इज नॉट जीरो इनसाइड दिस, पोटेंशियल इज कांस्टेंट. पोटेंशियल इज कांस्टेंट inside the conductor. Okay, and moreover, because the surface of the conductor is perpendicular to the electric field, let me write this, surface of conductor is perpendicular to electric field, I can say जो भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है. तो ये सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा. सो आई कैन से सरफेस ऑफ द कंडक्टर देयरफॉर इट इज इक्विपोटेंशियल. सो अब अगर जो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक साथ इकट्ठा करते तो आई कैन से दैट कंडक्टर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है. सो कंक्लूजन वुड बी पोटेंशियल इज सेम at all points of the conductor या on the conductor. सारे
पॉइंट्स पे आपका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो कंडक्टर या कोई भी मेटल अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होता है, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू, मान लो कि ये आपका मेटल ऑब्जेक्ट है, एक कंडक्टर है, ओके। यहां पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से यू हैव अ चार्ज Q, एंड आप इस चार्ज को यहां से यहां पे मूव करवाते हो। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। हाउ मच इज द वर्क डन इन दिस केस? वर्क डन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल। बट आपका इनिशियल पॉइंट एंड आपका फाइनल पॉइंट ये दोनों कंडक्टर के सरफेस पे ही है ना, एंड हमें ये पता है कि पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। तो ये V फाइनल एंड V इनिशियल वुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे तो योर वर्क डन वुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू मूव अ चार्ज। आप मान लो इसको ऐसे घुमा के भी यहां पे लेके आओ, मान लो यहां पे कहीं पे ये चार्ज है, आप इसको ऐसे घुमा 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 के फिर आप यहां पे लेके आओ, ओके। हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपका जो वर्क डन डिपेंड करेगा, लेट्स से दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, तो वर्क डन विल ओनली डिपेंड अपॉन योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। And because your initial and final points both are on the conductor, तो इन दोनों जगह पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो your work done will also be 0. So you have to remember this. If you move a charge from one point of the conductor to another point of the conductor through any path, work done is 0. Okay, let me write it over here. Work done is 0 when a charge is moved from one point of conductor to another point through any path. Okay, the reason is because both the points will have same potential, तो आपका potential difference 0 होगा, तो work done would be equal to 0. I hope you have understood this. Equipotential surface क्या होता है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, fine. Now using these concepts we will find out potential due to uniformly charged conducting sphere. ये sphere पे conducting sphere है तो charges जो होंगे वो बस surface पे ही होंगे. So let the charge be Q and the radius be R. Because charges surface पे है we will define surface charge density, that is Q divided by 4 pi R square. Okay. Now for the points which are outside the sphere, मान लो आपको यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है स्पीयर के वजह से, तो हमें यह पता है कि आप इस स्पीयर को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो, ओके, जिसपे चार्ज विल बी सेम एज Q एंड इफ लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, सो इन दिस केस फॉर R ग्रेटर देन R आपका पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। This is same as the formula for point charge, क्योंकि for points which are outside the sphere आप sphere को point charge से replace कर सकते हो, ठीक है ना। अगर जो आपको surface पे find out करना है तो potential on the surface of the sphere, on the surface of the sphere आप ये small r को capital R substitute कर सकते हो. So V becomes equal to 1/4 pi epsilon Q by capital R. This is potential on the surface of the sphere. Okay. Now if you go inside the sphere, okay, inside the sphere ये आपका metal sphere है ना, हमने अभी देखा है कि metals के सारे points पे जो potential होता है वो same होता है,
तो जो आपका पोटेंशियल सरफेस पे होगा, अंदर आप कोई भी पॉइंट दे दो, उस हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम ही होगा. सो पोटेंशियल at interior points will be same as potential on the surface. And which will be equal to 1 upon 4 pi epsilon q by r. तो आप कोई भी पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट दे दो या कोई भी और पॉइंट दे दो, हर एक पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल होगा इट विल बी सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस. इसलिए तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर इक्वी पोटेंशियल, राइट. पूरा सरफेस ही मेटल का जो होता है दैट इज इक्वी पोटेंशियल. I hope you have understood this concept of potential. Okay, you have understood what are equipotential surfaces. नेक्स्ट जो कुछ लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग पोटेंशियल ही डिस्कस करेंगे ताकि ये पोटेंशियल के आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. उसके बाद हम लोग वी विल एक स्पेशल केस हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज डायपोल. ओके, सो वहां पे भी ये पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट्स आएंगे. हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी स्टडी करेंगे. सो इन सारे केसेस में ये जो एक्सप्रेशंस है, कुछ कुछ केसेस में वी विल डिराइव देम एंड कुछ कुछ केसेस में जो ऑलरेडी प्रीवियसली डिराइव्ड एक्सप्रेशंस है वी विल यूज देम. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ. कंटिन्यूअसली रीड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये जो भी अलग अलग सेक्शंस हम लोग कर रहे हैं, प्लीज रीड देम. ओके, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. एंड मोरेवर जहां जहां पे जो जो वीडियोस में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अगेन री वॉच देम ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर होते जाए. ठीक है, फाइन, थैंक यू.